enzyme. Okay. What is the enzyme? Enzyme is a substance which is increase the reaction. Enzymes are the biocatalysts. Enzymes are the biocatalysts which will speed up the reaction without itself undergoing any change. What do you mean with this? These are the biocatalysts. Catalysts मैंने told ना, ठीक है? These are the biocatalysts which will speed up the reaction. It will accelerate the reaction. लेकिन without itself undergoing any kind of change. They won't change itself, but they will accelerate the reaction. Not to catalyze the reaction. ठीक है? For example, in the previous classes we have done that glucose is going to turn up into the glucose 6-phosphate in the presence of hexokinase and glucokinase. These two are the enzymes. Hexokinase or Glucokinase. That means that glucose are turning up into the glucose 6-phosphate with the help of glucokinase or Hexokinase. It will do what it will do. It will accelerate the reaction. These are the enzymes. Whenever the A is at the end, if you are going to see, it will be representing the enzyme. The A's type of thing which we have been seeing is glucokinase and hexokinase. What is glucokinase and hexokinase will do? It will accelerate the reaction, speed up the reaction. But these molecules will not going to change their structures. ये लोग अपना structures को change नहीं करते. एक मानो ऐसे समझिएगा, दोनों के बीच में लड़ाई लगा के उन्हें पीछे हट गए. Simple way of understanding. तो different way acting होगा enzyme. So depending on the enzymatic reaction, you can diagnose a different type of diseases. Too much of enzyme reactions in the disease, so it will start detecting the diseases. Okay? For example, if acidity is increasing inside your body, then what it is representing? Liver Liver disease. disease. If SGOT, then Heart disease. if it is not along with the acidity, Yes. अगर SGOT के साथ अगर इंक्रीज होगा, अगर SGOT सिर्फ इंडिविजुअल इंक्रीज हो रहा, if it is individual इंक्रीज हो रहा, तो it is representing the Heart disease. अगर both, along with the acidity, then it will be liver disease. okay. Any other enzyme you know? और दूसरा enzyme कुछ मालूम आपको? Amylase, Amylase for what? पैनक्रिया के लिए करते ना, Pancreatitis. और लाइपेज भी है, Lipase for वही पैनक्रिया. then what else? Enzyme जी or enzymes. What are other enzymes you know apart from this? Alkaline phosphatases. हाँ, ALP. ALP. Alkaline phosphatases. Now, what is the role of alkaline phosphatases? If it is individually increasing, Decreasing. increasing. Okay. अगर आज इंडिविजुअल इंक्रीज हुआ, आप LFT का पूरा रिपोर्ट देखा भाई, पूरे पैरामीटर्स नॉर्मल है, डायरेक्ट नॉर्मल है, नॉर्मल है, पूरे चीजें नॉर्मल है. सिर्फ ALP इंक्रीज हुआ, तो that is related to the bone disease, Bone. bone related. Okay. If it is increasing along with the acidity, then it is representing the liver disease. Okay. Along with SGOT. ऐसा नहीं हो, SGOT के साथ नहीं होगा. Okay. SGOT के साथ. Okay. ठीक है. ALP, alkaline phosphatases, if it is individual, total bilirubin, direct bilirubin, LFT parameter देखा भैया. In that, only you have to found that only the ALP got increased, and it is representing the bone disease. If it is increasing along with the acidity, then it is representing the liver disease.
अच्छा ए भी रहता है आपकी बॉडी में और एक सब्सटेंस होता है अल्कलाइन एसिड फॉस्फेट AC अल्कलाइन फॉस्फेट रहा तो एसिड फॉस्फेट रहेगा आपकी बॉडी में हाँ अल्कलाइन फॉस्फेट रहा तो एसिड फॉस्फेट रहेगा obviously acid phosphatase generally it is used to get increase in cases of prostatic cancer prosthetic cancer means जो prostate cancers prostate okay okay ठीक है the prostate type of cancer the A acid phosphatase is going to get increase acid phosphatase increase प्रोस्टेट कैंसर के लिए और कौन सा टेस्ट का डायग्नोस्टिकल इंपॉर्टेंस डायग्नोस्टिकली प्रोस्टेट कैंसर के लिए और कौन सा टेस्ट का यूरिन कल्चर कर सकते हैं नो यूरिन कल्चर की रिप्रेजेंटेशन है यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन Okay. पर्टिकुलर प्लेस के लिए कैसा बोलते हैं आप प्रोस्थेटिक मसाज नो प्रोस्टेट मसाज फॉर the fluid which has been got stuck over there you need to fluid analysis के लिए और एक टेस्ट हमारे पास आया है जिसका नाम है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन PSA प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन okay it is the test if the higher values we are going to get in the PSA then it is a representation of prostate type of cancers okay that's the commonly given after 40 years you will need frequent urination unable to work the urine prostate gland enlarged हो गया तो सिस्टम प्रॉब्लम्स हो गई या तो स्पेक्टर को ट्यूमर से रिलैक्स करता हूं या फिर सस्पेंड डिपेंड कैसा वाला केस होगा ठीक है तो 30 आफ्टर 40 अगर कोई सफर कर रहा एनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिकल ग्लैंड्स है एनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिकल ग्लैंड्स हमेशा बोलते हैं आपको क्या होता है एनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिकल itis एनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिकल फ्लूइड फील होगा उसमें हर्निया तो अलग हो गया बॉडी में का है हर्निया किसे बोलता वो स्टक हो जाता सर बॉडी में है वर्स डिफरेंस में हाँ। स्टक हो जाना हर्निया यस ये देखिए क्या होता है बार बार जो एडिपोज टिश्यूज वाला जो एरिया है पेरिटोनियम वाला जो एरिया है okay ड्यू टू द हेवी वेट इनटेक बाद में इसकी वेसिबिलिटी लूज रहती है okay तो कुछ भी ऐसा एक्सरसाइज आपके साथ वजन चुना होता है इसकी फट के वो इंटेस्टाइन बाहर की तरफ बल्ब होने लगता है हर्निया इज नथिंग बट बल्जिंग आउट कोई चीज बाहर निकल जा रही है you doctor what will do you will operate and you will send that thing inside ठीक है open with the इसकी particular hernia so prostate specific antigen is the antigen which is specifically used in order to diagnose the prostate cancer prostate ठीक है और दूसरा टेस्ट भी होता है तो दूसरा एग्जाम टेस्ट भी होता है एंजाइम्स में एंजाइम इधर मालूम लाइक गैस्ट्रिक का भी आता क्या बोलिए पेप्सिनोजन बने गैस्ट्राइटिस का कॉमन बैक्टीरिया क्या है कॉमन बैक्टीरिया हाँ कॉमन बैक्टीरिया को कॉल्ड द गैस्ट्राइटिस अभी बैक्टीरिया को पढ़ता है कॉमन बैक्टीरिया को कॉल्ड द गैस्ट्राइटिस हाँ एक मिनट स्टेफिलोकोकस ऑरियस सर उसमें होता ना गैस्ट्राइटिस का कौन सा बैक्टीरिया है फूड पॉइजनिंग होता ना सर उससे वो है लेकिन गैस्ट्रिक स्पेशली गैस्ट्रिक का बैक्टीरिया जो यूज फॉर अ लॉट एक्सपायरी
कॉमन बैक्टीरिया H. pylori. Okay. और कौन सा एंजाइम हो सकते हैं इस कैन डिस्कस बड़ा ज्यादा एंजाइम एक वो तो नहीं थायराइड प्रोफाइल ठीक है मैं और थोड़ा सा थायराइड प्रोफाइल चेक करने आता और वो थायराइड प्रोफाइल या पैरामीटर थायराइड प्रोफाइल TSH T3 T4 T3 T4 TSH. ये कॉमन बच्चों को मालूम है ओके ये कॉमन बच्चों को मालूम है व्हाट आर द अदर पैरामीटर्स जो चीजें हैं हां T3 है ना सर T3 रिप्रेजेंट करता है ये कर लिया अपार्ट फ्रॉम और कुछ टेस्ट कर सकते हैं आप इसके अंदर में अब सिर्फ T3 T4 देखने का दौर चले गया ठीक है हाँ वी आर चेकिंग आल्सो फॉर द फ्री T3 एंड फ्री T3 हाँ वो हमारे लैब में होता वो दौर चले गया दैट एरा हैज गॉन वेयर वी ओनली कंसर्न अबाउट टोटल T3 टोटल फ्री मीन्स ओनली T3. इट इज नॉट बाउंडेड बाय बाइंडेड विद एनीथिंग हम पढ़ाएंगे T3 नॉट बाइंडेड वी आर मोर कंसर्न अबाउट द फ्री कभी भी याद रखिए आपके पास the thing which has been not bounded with some other things we are not concerned about that are freely living कभी भी हम फ्री चीज को घूमते रहते हैं अपनी बॉडी में इसके लिए ज्यादा परेशान हैं तो अगर हाइपरथायरॉयडिज्म होता है तो व्हाट इज द कंडीशन हाउ यू कैन से TSH बढ़ के आता व्हाट विल बी द पैरामीटर यू विल बी इम्प्रूव ऐसा रूल आउट कर दिया हाइपरथायरॉयडिज्म में TSH बढ़ के आता TSH बढ़ के आता T3 T4 वो नहीं मालूम बोल रहे हाउ यू से हाइपरथायरॉयडिज्म में पेशेंट के सामने रिपोर्ट आ गया आपको उसका थायराइड बोलते हैं थायराइड का डिफाइन है हाइपरथायरॉयडिज्म हाइपोथायरॉयडिज्म अब तक के लेवल में इसमें अदर कंडीशंस भी है सिर्फ अब तक के लेवल इतना तो मालूम रहना है दिस इज द बेसिक थिंग यू शुड बी नोइंग इट इज फॉर अंडर द हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म हाउ यू क्लासिफाई हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है हाइपोथायरॉयडिज्म में अच्छा ये भी रिलीज हो गया ये कंडीशन क्या बोलता है हाइपर बोलता है याद रखिए शुड से T3 T4 बढ़ के रहा एंड TSH लो रहा तो इस हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं T3 T4 बढ़ के रहा एंड TSH लो रहा तो हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं और हाइपोथायरॉयडिज्म हाइपोथायरॉयडिज्म में उल्टा T3 T4 TSH will be increased and T3 T4 will be decreased तो इस हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं एक डाउट डिटेल लेक्चर है क्यों ऐसा है मीन्स थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब ज़्यादा रिलीज होगा तभी आप बताते हाँ मतलब थोड़ा वाइस वर्सा है हाँ हाउ दिस हैपन ठीक है हाइपोथायरॉयडिज्म में हाइपोथायरॉयडिज्म इसके अलावा भी हम आपको पढ़ाएंगे फ्री T4 के कॉन्सेप्ट क्या है इसके अलावा भी हम देखेंगे इसके साथ सब क्लिनिकल आपको करेंगे आज वाला हम देखेंगे थायराइड रिलेटेड डिजीजेस एलएफटी के पैरामीटर्स बोलिए हाँ एलएफटी के पैरामीटर्स टोटल बिलिरुबिन बोलिए हां चलिए डायरेक्ट बिलिरुबिन इनडायरेक्ट ALP ALB SGOT SGPT
एजिबिलिटी, हाँ। और एल्बुमिन हो गया, एल्बुमिन, ALB, एल्बुमिन। और रेशियो, टोटल प्रोटीन, हाँ। और वही रेशियो रहता, ग्लोबुलिन, हाँ, AG रेशियो। वो सारा कॉन्स्ट्रक्ट कॉन्जुगेट सिलेंडर, नहीं उसको कुछ, हाँ बताए सर। ऑब्स्ट्रक्टिव, बस नेक्स्ट हीमोलाइटिक, हीमोलाइटिक, ये सेकेंडरी, इसमें हेपेटो, ओके ओके। ALP is increasing what? Bone diseases. If it is individually increasing, It will be bone, along with SGPT, liver, ये इसका भी बोला, how, इसका भी बोला, हाँ। total protein, what is it increasing total protein? If total protein has too much of increase, then it is related to too much of increase. अगर increase देखने को मिला, increase quantity of total protein in cases of hepatitis. Hepatitis हमेशा it is not related to viral infection. हमेशा hepatitis viral infection की वजह से होना जरूरी नहीं है। hepatitis के सबसे पहले hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D ऐसे वाले कॉन्सेप्ट आते हैं। hepatitis always is not increasing with the liver virus से rather than okay। अगर जो लेवल ऑफ टोटल प्रोटीन अगर देखने को मिला तो टोटल प्रोटीन इट इज रिलेटेड टू द malnutrition। अगर टोटल प्रोटीन टोटल बिलिरुबिन के साथ इंक्रीज हुआ तो हेपेटाइटिस, नो ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके। ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं ओनली है। बोलिए टोटल प्रोटीन इंक्रीज हुआ तो खाली हेपेटाइटिस, नो लिवर रिलेटेड डिजीज, ओके ठीक है, लिवर रिलेटेड कोसिलिटिस। देखिए आपकी बॉडी के अंदर कोसिलिटिस ओवर प्रोडक्शन कब होती, ओवर स्टिमुलेशन मिला। ओवर स्टिमुलेशन जनरली कब होता है, जब मॉडल थोड़ा इनलार्ज होता है, हाँ। ठीक है। एल्बुमिन में आप ये पॉइंट अच्छा लिख के रख लो, स्टार्ट मार्किंग का पॉइंट। और जिसको भी एल्बुमिन लेवल्स लो दिखे आप 100% जाके चेक कर सकते हैं। लो लेवल ऑफ एल्बुमिन रिलेटेड टू द एडिमा, ये कंडीशन होना ही होना है उसमें, हाँ होना ही होना है। Why? Albumin it is responsible for maintaining the osmotic pressures inside your body. It is maintenance for your fluid balance. अगर fluid balance आपका disturb हुआ, for an example, whatever the fluids are there need to get circulated, provided the nutrition, and whatever the toxic materials are there, you need to get again back to the kidneys in order to get filtered out. But in cases of these kind of patients, those who are low albumins, albumin what it will do? It will trap the substance and it will take. So it will act as a transporter material. So if low level of albumins are there, the transportation of the toxic substances is not happening properly. It is not happening properly. So if low level of albumin अगर देखने को मिला less than 2, 3.5 है उसका नॉर्मल वैल्यू, अगर less than 2 देखने को मिला आपको 100% आप जाके चेक कर लो पर्सन को एडिमा है। एडिमा वही है ना सर, जो एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड्स, एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन द पेरिफेरी रीजन, पेरिफेरी रीजन इन द लिप्स, ओके। यहाँ पे प्रेशर कम रहता कंपेयर टू सेंटर, ठीक है। those kind of patient those who are suffering with the edema definitely आप जाके चेक करो।
उसका 100% 200% आई एम श्योर अब तक नहीं इलाज में सक्सेस नहीं देगा, ठीक है, 100% उसको देना है, ठीक है ना। ग्लोबल एजेस क्या होगा, मान लीजिए जनरली आपकी बॉडी विल रिएक्ट इन वाइस वर्सा। इफ एल्बुमिन लेवल्स आर लो देयर विल बी इंक्रीजिंग ऑफ ग्लोबुलिन लेवल इनसाइड योर बॉडी, दोनों चैनल्स एक दूसरे से कंपनसेट। आप एल्बुमिन लेवल से डिक्रीज, ग्लोबुलिन लेवल से इंक्रीज इनसाइड योर बॉडी, ये कोरिलेट है। अगर ग्लोबुलिन इंक्रीज हो गया आपकी बॉडी के अंदर, ग्लोबुलिन इज रिस्पांसिबल फॉर व्हाट, प्रोड्यूसिंग बिलीवरेबिलिटी। immunoglobulins. अगर too much production of the immunoglobulins is happening inside your body, then it is representing the autoimmune diseases. Globulin किस चीज के लिए responsible है? It is responsible for the immunoglobulins. जी। अगर immunoglobulins अगर आपकी बॉडी के अंदर रिलीज होना शुरू हो गया abnormally, so what it will do? Immunoglobulins, they will the firefighters. They are first defense mechanism in order to kill the bacteria, in order to kill any foreign material, foreign antigen inside the body. But what is happening? In spite of killing the foreign material, they are killing to our body. बाहर लोगों को मारना हो, लेकिन अपने बॉडी को मारना। तो ऐसे kind of diseases what we call autoimmune disorders, where the body itself taking to yourself. ठीक है? So globulin level. Now what is the role of Ag ratio? Albumin globulin ratio. वो दोनों Albumin globulin के बीच में कितना गैप आया उसको कैलकुलेट करना। So if we have a drugs को भी देते ना तो थोड़े ड्रग्स नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स देते। नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स नेफ्रॉन्स को किल नेफ्रॉन नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स के लिए गवर्नमेंट ने सेट किया आपने लेबोरेटरी में। अबे उसको पूछिए। मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन, मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन। छोटे ड्रग्स कैसे रखने वालों को आंसू हो जाए। ड्रग्स हमेशा प्लस में काम करना जरूरी नहीं है आपके बॉडी में। फॉर एग्जांपल आप हार्ट को ठीक करना चाह रहे हैं, हेवी लोड देना पड़ता है ड्रग का, जिसकी वजह से आपकी किडनी खराब हो जाए। कोई ऐसा बैक्टीरिया है, ठीक है, रेसिस्ट कर रहा, एमआरएसए मिल गया जिसमें एमआरएसए पूरे चीजों को रेसिस्ट करते जा रहा। अब आप ड्रग्स देते व्हाट इज लास्ट ड्रग ऑफ चॉइस? अब आप सेकेंडरी क्या पढ़ा, व्हाट इज द लास्ट ड्रग ऑफ चॉइस? इसके बाद कोई ड्रग लगता है कि फोर्थ जनरेशन का होगा, फोर्थ जनरेशन का होगा कोई एमॉक्सिसिलिन समथिंग। ये मालूम करके वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लास्ट ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे थोड़े ड्रग्स ऐसे हैं जो नेफ्रोटॉक्सिक है। एक चीज तो अच्छा करने जा रहा, पैरेलली दूसरा खराब है, तो इसके लिए आप एमआईसी करें आपके लेबोरेटरी। एमआईसी व्हाट यू मीन बाय अमाउंट ऑफ मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन। वो चेक करके 5 ड्रग्स है आपके पास, उसमें से पूरे के पूरे लगते हो बैक्टीरिया, लेकिन आप क्या करते मालूम, उसको देख के कौन सा ड्रग कम हार्म कॉज कर रहा, हार्म कॉज तो पूरे ड्रग्स से करे, कम कौन सा कर रहा, वो चेक करने को क्या बोलता एमआईसी, जो कम काम कर रहा है, बैक्टीरिया को मार रहा है, किडनी भी खराब कर रहा, इतना खराब कर रहा है कि हम मैनेज कर ले सकते। तो वैसे ड्रग्स के चुनने को क्या बोलता मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। Those are nephrotoxic drugs, but they are showing lesser effect compared to the other drugs. So to check out those kind of drugs, it will be called as the minimum inhibitory concentration. ठीक है? So ऐसे drugs जब nephrotoxic drugs देते रहते, जिसकी वजह से albumin level लो होने के chances रहते हैं, globulin बढ़ जाने के chances रहते हैं, तो they look after for the Ag ratio. There are other things are also there, but these are also things. When your person is not going on the drug therapies, any kind of thing, they will monitor for the Ag ratio. वरना आप एक चीज अच्छी करने जाते हैं दूसरी चीज खराब होती है। शुगर का भी ऐसे है,
आप शुगर की गोलियां कंटिन्यू खाते जाओ, शुगर ठीक होती है, किडनी खराब होगी। So you should look out for these things. Okay? So minimum inhibitory concentration. यूरिन के लिए कौन से अब रैंडम टॉपिक्स है। यूरिन के लिए कल्चर कर रहा, कौन से कल्चर स्पीड से लगाना, यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए सबसे पहले यूरिन कल्चर करता, कौन से इस पे लगाना कल्चर के लिए हमारे पास कौन से कल्चर प्लेट्स लगा है, मैकॉन्की में लगाते हैं, मैकॉन्की का, देन ब्लड में, देन और नहीं मालूम बोल रहे ये माइक्रो थेराइड डिपार्टमेंट है। कौन सा और लगा, कॉमन लगा है सर, डीप लिक्विड फॉर्म्स कॉमन बड़ा लगा यूरिन कल्चर, यू शुड ऑलवेज सिक क्लेड लगा, क्या है क्लेड लगा, CLED, ये कॉमनली यूजिंग agar है। What is the role of the clade agar? What is the role of the clade agar? प्रोटीएस का ग्रोथ कैसा है? वो क्या बोलते हैं वो प्रोटीएस अजीब will कहते grow. What is the striking feature? स्वामिंग ग्रोथ। आपको नहीं आ रहा स्वामिंग ग्रोथ, थोड़ा टफ टर्मिनोलॉजी यूज करो, करियर में आगे ना थोड़ा बात कर सकते तो what is the role of the swarming growth? For example, if somebody is suffering, it's a key point to बोलते हैं। Example के तौर पे, if somebody is having the Proteus as well as E. coli, but what is happening, you know, in the culture media, if you are going to see the blood agar and the chocolate agar, blood agar and the Mesonki agar, what is going to be happening? The growth is there, but Proteus किससे grow हो रहा, E. coli से grow हो रहा। अब आपको इतने प्रोटीएस ग्रो हो गया कि इट हैज बीन ओवरलैप टू द E. coli। ओके हो सकता है ऐसा। So when you are checking out, we are getting the treatment for the proteus, even though the UTI is not getting treated. Why? Because there are two causes are there. Proteus भी है उसको, E. coli भी है उसको। सिर्फ प्रोटीएस की मेडिसिन दे रहे लेकिन प्रोटीएस तो ठीक हो रहा, लेकिन E. coli ठीक नहीं हो रहा उसका। So to avoid those kind of things, we are also introducing the clade agar. What it will the role of the clade agar? Clade agar will inhibit the growth of proteus. ओके ठीक हो गया। clade agar it will inhibit the growth of the proteus. अगर proteus चाहिए मैकॉन्की से ले लो, clade agar से ले लो। अच्छा सेलेक्टिव आगर। सेलेक्टिव agar। ओके proteus swarming growth होता है। दूसरे बैक्टीरिया ले लेता कुछ इनहिबिट कर देगा। Clostridium ये वो एंटीबायोटिक्स आएंगे, you are inhibiting the growth so that E. coli, other bacteria, Klebsiella, those are responsible for the UTI. Those bacteria are also going to get detected. अब यहाँ पे की पॉइंट है, बहुत अच्छा जबरदस्त की पॉइंट है। यूरिन कल्चर में if you are able to find more than 3 type of bacteria, ये बहुत अच्छा की पॉइंट है, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स की बात है। यूरिन कल्चर में if you are finding more than 3 type of bacteria, that means that your urine has got contaminated। नहीं रिपोर्ट करना, ऐसा नहीं हो सकता। 3 ही बैक्टीरिया देख सकते हैं आप, 3 से ज्यादा अगर देखते तो समझ जाओ यूरिन कंटामिनेटेड। You should not do it. You should go for the one more fish chart। क्राइटेरिया फॉर सैंपल कलेक्शन में ये भी एक क्राइटेरिया है, ठीक है। अराउंड KBL and the American Institute of Microbiology suggested that 3 type of bacteria से more than that, E. coli, Klebsiella, Proteus भी दे दिया, Salmonella भी देख रहा था। Your urine sample has got contaminated, you should not do the testing on that। 3 बैक्टीरिया देख सकते थे आप, उससे ज्यादा अगर दिख रहा तो आपका यूरिन कंटामिनेटेड हो गया। ठीक है। कॉलोनी काउंट के बारे में मालूम, व्हाट इज द कॉलोनी काउंट? कॉलोनी काउंट हाउ डिड यू डू CFA कॉलोनी फॉर्म? हाउ यू डू कॉलोनी काउंट? कॉलोनी काउंट कैसे करते हैं?